Hi everyone. Once again, quadratic equations. आज हम कुछ variety of questions will discuss today in quadratic equation. Almost हम जितने सारे concept थे सब कुछ खत्म हो चुका है. जितना quadratic का जितना basically जितना concept है सब नहीं बोल सकते कि सब कुछ खत्म हो गया. It's not limited. Okay? तो almost हम जितना J level में जितने सारे concepts है कर चुके हैं. आज कुछ वही कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस. चलो लेट्स रेडी. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन. Okay, this is my first question. Find number of real values of x for which x minus 1 upon x square minus 4 is equal to 2 minus 1 upon x square minus 4. ऐसे क्वेश्चन. इन जनरल हम क्या करते हैं, इसको देखे नहीं ऐसे कैंसिल कर देते, देन हमें मिल जाता है x इक्वल टू 2. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, वन सॉल्यूशन. If you write, then it is wrong. Actually, x is equal to 2 is not your solution. Why? If x equal to 2, then x square minus 4 becomes 0. So 1 upon x square minus 4 became undefined, not defined. तो कोई अनडिफाइंड चीज को हम ऐसे बोथ साइड कैंसिल कर नहीं पाएंगे. ठीक है ना. जैसे कि 2 प्लस इंफिनिटी टेंस टू इंफिनिटी, 7 plus infinity tends to infinity. So if you write 2 plus infinity equal to 7 plus infinity and cancel the infinity, then 2 equal to 7. Is it true? है ना. So before cancel both the sides, this term should be non-defined term. Okay? तो आप ऐसे लिख नहीं पाते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, x minus 1 upon x square minus 4 is equal to 2 minus 1 upon x square minus 4 defined only when x square minus 4 is not equal to 0, implies x is not equal to plus minus 2. तो अब इसको आप कैंसिल करोगे, then x equal to 2, but in this condition x should not equal to plus minus 2. So this question has no solution, which is not possible. Hence, this question has no solution. समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन देखे बोथ साइड कैंसिल कर दिए. ठीक है. तो ऐसे आपको बार बार चेक करना पड़ता है चीज को. ओके. नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज, if alpha, beta, gamma are the roots of equation x cube plus 8x plus 3 equal to 0, then find value of alpha plus beta to the power minus 1 plus beta plus gamma whole to the power minus 1 plus gamma plus alpha to the power minus 1. इसका वैल्यू निकालेंगे. हाउ टू सॉल्व?
Clearly x cube plus 8x, you can write 0 into x square, no x square term, plus 8x plus 3 equal to 0. Roots are alpha, beta, gamma. So you have sum of roots, alpha plus beta plus gamma, 0 हो जाएगा. Sum of two roots, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha इक्वल टू 8 होगा, क्योंकि इसका पोजीशन माइनस, इसका पोजीशन प्लस, इसका पोजीशन माइनस. देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा इक्वल टू व्हाट, -3. थ्योरी ऑफ इक्वेशन के हिसाब से जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ये मेरे पास 3 कंडीशन है. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, 1 बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1 बाय सॉरी 1 plus alpha 1 upon alpha plus beta plus 1 upon beta plus gamma plus 1 upon gamma plus alpha. This one you can write using this thing. Alpha plus beta plus gamma equal to 0. So alpha plus beta you can write 1 by minus gamma, 1 by minus alpha, 1 by minus beta. So minus 1 you can take common, LCM हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, न्यूमरेटर हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, which is minus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that you can write 8 upon alpha beta gamma, that already you know, -3. Answer became है ना. कितना इजी क्वेश्चंस समझा. हम जितने कुछ जाने थे उसके ऊपर हम क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे. तो ये चीज हम कर चुके थे पहले, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस. ठीक है. Then my next question. Okay. Now question is, if alpha beta are the real roots of now question is, if alpha beta are the real roots of the equation x square minus 2x plus 1 equal to 0, where a belongs to real number, alpha beta भी दिया गया कि real roots, then find values of a square when alpha by beta cube plus beta by alpha square attains a minimum value. Whenever this one minimum, वो केस के लिए आपका ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए. ठीक है. रियल रूट्स मतलब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स 4a स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 implies a square greater than equal to 1. ये तो होना चाहिए. ना कम टू ये मिनिमम होना चाहिए, अल्फा बाय बीटा क्यूब प्लस बीटा बाय सॉरी नॉट बीटा स्क्वायर, बीटा बाय अल्फा क्यूब, यूज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये दोनों का प्रोडक्ट का रूट ओवर, मतलब a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab using am greater than equal to gm. ठीक है.
तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा कैंसिल होगा, बीटा कैंसिल होगा, 1 बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. What I did here, I used am greater than equal to 0. And from this equation, what is the alpha plus beta? It is 2a. Alpha into beta 1. तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा. तो इसका मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 बाय बीटा क्यूब प्लस बीटा बाय अल्फा क्यूब इक्वल टू 2 implies alpha raised to 4 plus beta raised to 4 upon alpha beta whole cube equal to 2. This one you can write alpha square plus beta square whole square minus 2 alpha square beta square upon alpha beta whole cube equal to 2. ठीक है ना. What is alpha square plus beta square? Make it equation 1. Now find out alpha square plus beta square. This one you can write alpha plus beta ka whole square minus 2 alpha beta, which is alpha plus beta is the 2a 4a square minus 1. क्योंकि alpha into beta is the 1. Using 2 in your 1 implies using 2 in 1 implies what? इसका whole square 4a square minus 1 whole square minus 2 upon 1 greater than no equal to 2. That implies 4a square minus 1 ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 2, राइट. ओके, बराबर ना. समझा कि नहीं समझा. I think 2 alpha beta. I have done here mistakes. Yeah, 2 alpha beta is the 2, not 1. So this is I did here mistake. Alpha plus beta का whole square. It's the 2a का whole square. 4a square minus 2 alpha beta. Alpha beta is the 1. So this is the 2. Okay. तो ये होगा 2. Right. तो ये होगा 2. Implies what? So if you take plus 2, तो 4a square equal to 4. So a square equal to 1. Now if you consider here minus 2 or a square equal to 0, but a square equal to 0 आप ले नहीं सकते हो. A square 4a square equal to 4. 4a square equal to 4 means a square equal to 1. A square equal to 1 or a square equal to 0. Why a square is not equal to 0? 0 क्यों ले नहीं पाएंगे? चेक करो. If a square equal to 0, if a square equal to 0, then a is equal to 0. तो आपका जो क्वेश्चन था कि x square minus 2x plus 1 equal to 0, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा. Means x square plus 1 equal to 0. तो x का रियल रूट्स, then x has
नो रियल रूट्स, बट क्वेश्चन था कि रियल रूट्स, अल्फा बीटा और रियल, ओके, नो रियल रूट। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, हेंस वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये समझ में आया कि नहीं आया, है ना। क्वेश्चन क्या था, अल्फा बीटा द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0, ए बिलोंग्स टू रियल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर व्हेनेवर दिस वन मिनिमम। एक तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, जो कंडीशन था कि ए स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई हो गया। चलो ये कब मिनिमम होगा, तो मैंने क्या किया, इसमें यूज किया ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो इट इज कंसिडर दिस वन एज एक्स, दिस इज द वाई, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, एक्स प्लस वाई बाई 2, सर कर सकता हूँ, एम जी एम ऑलरेडी नो, x plus y by 2 am greater than equal to gm, root x by, means what, x plus y always greater than equal to 2 root x y, so this is your am greater than equal to gm। तो ये मैंने यूज किया था, तो this one consider as x, this one y, तो greater than equal to 2 root x y, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा एक कैंसिल होगा, बीटा कैंसिल होगा, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बचा, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 मैंने डाल दिया, तो इसका मिनिमम वैल्यू हुआ 2। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू 2, इसको सिंप्लीफाई किया तो एलसीएम हो गया अल्फा बीटा होल क्यूब, न्यूमरेटर हो गया अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4, अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4, यू कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इससे पहले मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला, व्हिच इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इधर 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 2, ये 2 इक्वेशन मैंने 1 में डाला, दिस इज इक्वेशन 1, तो व्हाट यू गॉट, 4a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2, तो 4a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट करेंगे, इसको इधर ले लिया, प्लस 4 हो गया, स्क्वायर रूट किया, प्लस माइनस 2 मिला, प्लस 2 रखेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा 4, तो a स्क्वायर इक्वल टू 1, माइनस 2 रखेंगे तो माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर 0, a इक्वल टू 0, बट a इक्वल टू 0 हम ले नहीं पाएंगे, इफ a इक्वल टू 0 तो आप गिवन इक्वेशन में डाल दोगे, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो नो रियल रूट्स। और ऐसे भी देख सकते हो, रियल रूट्स के लिए ए स्क्वायर का वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो 0 तो हो नहीं पाएगा, दैट आल्सो यू कैन कंसीडर, ओके, ये भी लिख सकते हो। आज ए स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये भी छोड़ दो चलेगा, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। समझा कि नहीं समझे, अच्छा क्वेश्चन था, चलो देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, now my next question is, in an acute angle triangle, if angle A is the pi by 4 or 45 degree, then find all possible values of tan B into tan C, okay, so how to solve this question, as angle A is the pi by 4, that implies आपका B plus C एंगल क्या हो जाएगा 3 pi by 4, ठीक है। Now use tan of both the sides, means tan of B plus C became tan 3 pi by 4, tan B plus C, tan B plus tan C upon 1 minus tan B into tan C
equal to -1. Let us take this value is the t. तो आपको ये क्या मिलेगा, tan b, tan c you can write t upon tan b. मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सबको tan b में कन्वर्ट करने के लिए। upon 1 minus t became -1 implies आपका हो गया tan square b plus t upon b into 1 minus t is equal to minus क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 minus t into tan b. That implies what you got, tan square b plus 1 minus t into tan b plus t equal to 0. Already know tan b always real number as tan b belongs to real number. This is the quadratic of tan b. tan b आपका real number, तो क्या होगा, so discriminant must be greater than equal 0 implies 1 minus t का whole square minus 4t greater than equal 0 implies t square minus 6t plus 1 greater than equal to 0. ठीक है ना, तो क्या मिला, t square minus 6t plus 1 greater than equal to 0. तो इसका रूट्स क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 36 minus 4ac 4 upon 2 which is 3 plus minus यहाँ पर 32 का रूट 4 रूट 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे 2 रूट, ओके। तो t का वैल्यू हम क्या लेते हैं, tan b into tan c. आज क्वेश्चन वाज व्हाट acute angle triangle, तो tan b into tan c must be greater than 0, ये तो पक्का। तो ये जो इसमें ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए इफ यू यूज वेविकर मेथड, तो एक रूट रहा 3 माइनस 2 रूट 2, आपका रूट 2 का वैल्यू 1.414 इंटू 2 2.82, तो ये पॉइंट समथिंग 3 प्लस 2 रूट 2, तो इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। बट आज t ग्रेटर देन 0, तो आपको क्या मिलेगा, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो कॉमन सॉल्यूशंस, तो t, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ tan b tan c मींस t बिलोंग्स टू 0 से लेके 3 माइनस 2 रूट 2 यूनियन 3 प्लस 2 रूट 2 से लेके इंफिनिटी तक जा सकता है। तो दिस इज योर, समझ में आया कैसे बना क्वेश्चन। In an acute angle triangle, angle A was pi by 4. Then find all possible values of tan B into tan C. मैंने tan B tan C को t ले लिया। तो आज एंगल A was pi by 4, तो B plus C 3 pi by 4। अब tan मैंने यूज किया, tan A plus B का फॉर्मूला डाल दिया, सिंप्लीफाई किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मुझे मिला क्वाड्रेटिक ऑफ tan B, tan square B plus 1 minus t into tan B plus 1 t equal to 0. tan b belongs to real number, so discriminant must be greater than equal 0. इसमें मिला t square minus 60 plus 1 greater than equal 0. तो equal 0 होता तो these two are roots equal 0 के लिए, but it is greater than 0, तो roots के बाहर रहेगा।
तो t का वैल्यू मोर देन 3 प्लस 2 रूट 2 और लेस देन 3 माइनस 2 रूट 2. बट tan b tan c, आज क्वेश्चन वाज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो tan b पॉजिटिव tan c भी ग्रेट पॉजिटिव, जीरो की तरफ आ सकता है. तो tan b tan c ग्रेटर देन जीरो, one saying greater than zero, other one saying it more than this or less than of this. इसको हम combined solution रखेंगे. Intersection part you have to consider. So this part is the intersection part. Intersection part in this part. ये मिला, ये तो आगे चलता रहेगा. ठीक है. Okay. My next question is, if x belongs to real number, then solve 2x power 4 plus x cube minus 11x square plus x plus 2 equal to 0. एक्चुअल देखोगे तो फोर्थ डिग्री इक्वेशन, फोर्थ डिग्री इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कम से कम एक दो रूट्स आपको चाहिए ट्रायल मेथड में, अदरवाइज इतना इजी नहीं तो डेरिवेटिव कहीं पे यूज किया जाता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं. बट हम इधर तो क्वाड्रेटिक डिस्कस कर रहे हैं. ये क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक बार मार्क करो, ये थोड़ा सिमेट्रिकली जा रहा है. कोएफिशिएंट्स 1 1 2 2 सेम, साइन भी सेम होना चाहिए. और ये तो इसमें हम हाउ टू मेक दिस वन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करो. तो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय x स्क्वायर, डिवाइड गिवन इक्वेशन बाय x स्क्वायर. व्हेन यू डिवाइड x स्क्वायर देन x इज नॉट इक्वल टू 0. देखो x 0 होगा तो 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो क्लियरली x इज नॉट इक्वल टू 0. तो डिवाइड x स्क्वायर बोथ द साइड्स, divided by x square both the sides. Implies what? आपको मिलेगा 2x square plus x minus 11 plus 1 by x plus 2 by x square is equal to 0. Clearly x is not equal to 0. वो तो obvious है. हम क्या करेंगे, इसको ये दोनों को कंबाइन करेंगे क्योंकि ये सब सिमिलर टर्म्स हो रहा है, तो ऑल सिमिलर टर्म्स यू हैव टू कंबाइन. तो 2 into x square plus 1 by x square plus x plus 1 by x minus 11 becomes 0. Now take let us take x plus 1 by x equal to t. तो t must be greater than equal to 2 or less than equal to minus 2. ये होना चाहिए, क्योंकि if we use am greater than equal to gm, तो x plus 1 by x greater than equal to 2 into x into 1 by x का root over. So it is more than equal to when positive, less than equal to minus 2 when x negative. Anyhow, तो हम इसमें t डालेंगे. Now x square plus 1 by x square, you can write x plus 1 by x का whole square minus 2 into x 1 by x means you'll get t square minus 2. अब इसमें यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें. Now equation 1 became 2 t square minus 2, है ना. x square plus 1 by x square, you can write t square minus 2 plus t minus 11 equal to 0.
implies what? T square plus t minus 15 equal to 0. Multiplication 30, sum is the 1, so 6 and 1. So you have 2t square plus 60 minus 5t minus 15 equal to 0. Implies 2t minus 5 into t plus 3. इधर से 2t कॉमन रखेंगे तो t plus 3, minus 5 रखेंगे तो t plus 3 equal to 0. That implies t equal to 5/2 और -3. तो दोनों में आ जाएगा क्योंकि this is more than equal to this one less than equal to -2. Both satisfied. Now, if t is equal to 5/2 implies x plus 1 by x equal to 5/2. इसका एक शॉर्टकट हम मार सकते हैं. Can I write 5/2 as 2 plus 1/2? Implies x क्या होगा? 2 आएगा और 1/2 आएगा. x 2 रखेंगे तो 1/x 1/2 होगा. नहीं, x को 1/2 रखे हुए 1/x 2 हो जाएगा. है ना शॉर्टकट? If t equal to -3 implies x plus 1 by x equal to -3. इसमें शॉर्टकट नहीं लगेगा. जहां पे लगाना था मैंने लगा दिया. इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा. Then x square plus 1 equal to -3x plus 3x minus 1 no plus 1 become 0. चेक करो b square minus 4ac. yes positive. 9 minus 4. तो x क्या होगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4. ठीक है. तो देयर आर 4 वैल्यूज ऑफ x. क्या मिला? 2 और 1/2 और तो देयर आर 4 वैल्यूज ऑफ x. एक मिला आपको 2 मिला, एक मिला 1/2, एक मिला -3 प्लस √5/2 और एक मिला -3 माइनस √5/2. देयर आर 4 वैल्यूज ऑफ x. सपोज इधर डिस्क्रिमिनेंट कहीं पे लेस देन 0 होता तो नो नीड टू फाइंड आउट x वैल्यू क्योंकि वो इमेजिनरी में चला जाएगा. समझे कि नहीं समझे? ये फॉर्मेट आप याद रखिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. बट आपका ये होना चाहिए. जरूर नहीं कि x पर 4 x पर 6 होगा भी तो 3rd डिग्री आ जाएगा. x पर 8 से होगा तो फिर 4th डिग्री हो सकता है कि वो अगेन 2nd डिग्री में कन्वर्ट हो जाए. बट ये सिमेट्रिक होना चाहिए. कोएफिशिएंट आपका लेफ्ट एंड राइट सिमेट्रिक होना चाहिए मिडिल से. ये 2 ये +2 ये +2 ये +1 +1. तो ये केस में हम मिडिल में जो डिग्री है उसमें ही डिवाइड करना पड़ता है. x स्क्वायर मैंने डिवाइड किया तो ये रहा 2x स्क्वायर, ये रहा x, ये -11, ये 1/x, ये 2/x. फिर जितना सिमिलर टर्म्स था ना उसको मैंने एक साथ रखा. तो 2x स्क्वायर 1/x स्क्वायर दैट टू आर सिमिलर. डिग्री वाइज आप देखोगे तो सिमिलर टर्म्स. तो 2 × x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लाइक x प्लस 1/x -11 = 0. तो इसको फिर मैंने t मान लिया. ये हो जाएगा t स्क्वायर -2. तो फिर डाल दिया 2 × t स्क्वायर -2 प्लस t -11 = 0. इसको सिंप्लीफाई किया तो 2t स्क्वायर प्लस t -15 = 0. तो दो रूट्स मिला 5/2 और -3. अब t को रिप्लेस कर दिए फिर x प्लस 1/x = 5/2. चाहो तो आप इसको क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर सकते हो बट यहाँ पे एक शॉर्टकट मैंने डाल दिया
क्योंकि 5/2 ऑल्सो यू कैन राइट 2 + 1/2। आप बोलोगे 3 - 1/2 रखोगे, कर नहीं पाएंगे। 3 - 1/2 करेंगे तो ये इसके साथ कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि ये x + 1/x फॉर्मेट में होना चाहिए। दैट्स x = 2 हुआ, नहीं तो 1/2 हुआ। नहीं, ये आपको नहीं जम रहा है तो आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो, विल गेट दिस थिंग। देन -3 t = -3, तो x + 1/x = -3। यहाँ पे जैसे मैंने क्वाड्रेटिक किया, इधर आप क्वाड्रेटिक कर सकते थे। अगेन 2 रूट्स, सो देयर आर 4 रियल रूट्स। समझा ना? ओके, गुड।